Good morning, students and students. Today we discuss the matrix method or some numericals of a matrix method. As we discussed in our previous lecture, the matrix method is used to solve the system of equation. So first of all, we can write our system of equation into a matrix form. Then beta we write Ax equals to B. ठीक है, X is a matrix of variable which we want to find, and A and B are the matrices that are obtained from the given system of equation. So students, after writing Ax equals to B, we find the value of x equals to with the help of A inverse into B. And we discussed the condition that to find the unique solution, determinant of the matrix, beta determinant of matrix क्या होना चाहिए is non-zero. अगर बेटा डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने कंडीशंस डिस्कस करी थी कि इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, if determinant of matrix is non-zero, then we find a unique solution. बेटा फिर हमारा कौन सा solution आता था? Unique solution. Then we obtain a unique solution. Unique solution and system of equation is consistent. And beta if our a determinant is zero, अगर बेटा a का determinant क्या है? Zero, then बेटा जी there is a need of further discussion. तो बेटा फिर इसके लिए हम लोग क्या फाइंड करते थे? adjoint a. If your adjoint a into b, adjoint a into b equals to 0, then the system of equation is consistent and has infinitely many solutions, and has a infinitely many solution. If adjoint a into b is not equals to 0, अगर बेटा ये 0 नहीं है, then the system of equation is inconsistent. And the meaning of inconsistent system of equation means there is a no solution for the given system of equation. So beta for applying the matrix method, बेटा अगर हम लोगों ने matrix method अप्लाई करना है तो फर्स्ट हमें बेटा क्या फाइंड करना पड़ेगा? a का डिटर्मिनेंट. अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो कौन सा सोल्यूशन आएगा? यूनिक. अदरवाइज बेटा हमें अगर जीरो आ गया तो फिर फर्दर डिस्कशन करनी पड़ेगी. आइदर इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन. Now beta we discuss the numerical based upon the matrix method. So beta हम आज numerical discuss करेंगे. One numerical we already discussed in our previous lecture, in our previous class. ठीक है, तो बेटा आज हम discuss करते हैं next numerical. Write down बेटा जी solve the system of equation. Solve the system of equation. लिखिए बेटा जी, solve the system of equation. Solve the system. Solve the system of equations. Solve the system of equation 6x plus y plus z, 6x plus y plus z equals to 16, 2x minus 3y plus 4z equals to 13, x plus 7y minus 2z equals to 3. So बेटा we want to solve this system of equation. ठीक है बेटा जी, हम इस system of equation को solve करना चाहते हैं. So बेटा first step is we write the given system of equation into a matrix form. So बेटा the given system of equation in matrix form, the given
the given system the given system of equations the given system of equations in matrix form. So beta in matrix form this is written as beta इसको हम कैसे लिख सकते हैं? We can rewrite this 6 2 1 1 1 minus 3 1 minus 3 7 1 4 minus 2 into x y z into x y z equals to this is equals to 16 13 and 3. That means ax equals to b. Now बेटा to solve this system of equation first बेटा हमें पता है हम लोग क्या find करेंगे a का determinant. So बेटा if I find a determinant तो बेटा मेरा a determinant अब अगर बेटा मैं find करूंगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? Here I find a determinant equals to 6 into minus 3 7 4 minus 2 minus 1 2 1 4 minus 2 plus 1 into 2 1 minus 3 7. तो बेटा इसको सॉल्व करो. यू कैन सॉल्व दिस. बेटा जी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो. वी डिस्कस अ नंबर ऑफ टाइम्स हाउ वी कैन सॉल्व दैट. दिस इज इक्वल्स टू बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इक्वल्स टू 6 minus 28 minus 1 ठीक है -1 -4 -4 plus 1 14 plus 3 ठीक है बेटा. you can solve this and find the value बेटा. now just the operation of multiplication and addition. तो बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? -107. that is not equals to 0. now beta a determinant is non-zero. that means the given system of equation therefore the given system of equation कौन सा सोल्यूशन आएगा? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन एज अ यूनिक सोल्यूशन. नाउ बेटा वी वांट टू फाइंड द दैट यूनिक सोल्यूशन. बेटा we know that to apply the matrix method we required a inverse. so beta to find a inverse find the cofactors. beta if you find the cofactor of your first element C11 चेक करो बेटा जी. योर फर्स्ट कोफैक्टर इज इक्वल्स टू -22. योर सेकंड कोफैक्टर एज बेटा वी डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स. बेटा हम लोग कैसे कोफैक्टर फाइंड करते हैं? बेटा वैसे ही हम लोग कोफैक्टर फाइंड करेंगे और द कोफैक्टर्स फॉर द फर्स्ट रो आर -22 8 and 17. now beta here I can write the cofactors for a second row. सेकेंड रो के बेटा मेरे कोफैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 9 C22 बेटा जो सेकेंड कोफैक्टर है दैट इज इक्वल्स टू -13 एंड बेटा जो मेरा थर्ड सेकेंड रो का थर्ड कोफैक्टर है दैट इज इक्वल्स टू -41. नाउ बेटा बी क्विक जल्दी से फाइंड द कोफैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू थर्ड रो. जल्दी से फाइंड करो एंड राइट इन द चैट बॉक्स. beta this is a not only the duty of a few students to solve that. beta all the students solve this and write in a chat box. सारे बेटा स्टूडेंट्स सॉल्व करो और राइट इन अ चैट बॉक्स. बी क्विक.
ओके, सो बेटा राइट इन अ चैट बॉक्स, वेरी गुड। सो बेटा आपके जो थर्ड रो के को फैक्टर्स आ रहे हैं दैट आर इक्वल्स टू, वेरी गुड बेटा, जिन स्टूडेंट्स ने किए हैं वेरी वेरी गुड बेटा, चेक करो, यूर को फैक्टर्स आर 7 -22 एंड -20। ठीक है बेटा, जब हम लोगों ने को फैक्टर्स फाइंड किए दैट इज इक्वल्स टू 7 -2 एंड -22। वेरी गुड बेटा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। सो बेटा आफ्टर फाइंडिंग द को फैक्टर्स, बेटा अब हम क्या लिखेंगे, हमारा एडजॉइंट ए। सो बेटा नाउ द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, हमें पता है हम एडजॉइंट ए कैसे लिखते हैं, मैं जो एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर देन उसका ट्रांसपोज। सो बेटा हियर आई कैन राइट, फर्स्टली बेटा मैं क्या लिखूंगी, एडजॉइंट ए। सो बेटा आई कैन राइट एडजॉइंट ए, फिर उसका क्या फाइंड करेंगे हम लोग, इनवर्स। ठीक है, तो बेटा जब मैं अब यहाँ पे एडजॉइंट ए लिखूंगी देन माई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, बेटा को फैक्टर्स लिखो कॉरस्पॉन्डिंग, दिस इज इक्वल्स टू -22 8 17 9 -13 -41 7 -22 एंड -20। उसके बाद बेटा जी इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज बेटा मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ ए इनवर्स। ए इनवर्स वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। now beta determinant of a we already find that this is equals to minus of 107। अब बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगी वैल्यू, क्या आ गया मेरा, -22 8 17 9 -13 -41 -41 7 -22 and -20। now beta after finding a inverse we can write x equals to, बेटा अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की। माई x इक्वल्स टू, बेटा वो किसके इक्वल होता है, a इनवर्स इंटू b। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू क्या थी मेरी, माई x इज x y एंड z। ठीक है, x बेटा मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई a इनवर्स। बेटा a इनवर्स की वैल्यू लिखो, ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी मेरी, -107। अगर ए इनवर्स, बेटा ए इनवर्स की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगी तो बेटा माई ए इनवर्स इक्वल्स टू, ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -107 इंटू बेटा क्या आएगा, -22 -22 9 7 8 -13 -13 -22 7 -41 -20 and beta put the value of B matrix। अगर B matrix is, बेटा B matrix की वैल्यू हमारी क्या थी, 16 13 and 3। ठीक है, this is equals to 16 13 and 3। now beta multiply these two matrices, if I multiply these two matrices, अगर बेटा मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, बेटा आप लोग मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बी क्विक बेटा, राइट इन अ चैट बॉक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज योर आंसर फॉर अ मल्टीप्लिकेशन। so beta when I multiply this I get x y z, my x y z equals to, this is equals to, बेटा किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, योर फर्स्ट एलिमेंट इज -107। बेटा हमें मल्टीप्लाई करना आता है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट आएगा दैट इज इक्वल्स टू -214। बेटा फिर सेकंड रो इनटू दिस कॉलम करेंगे, -107। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या आ रहा है, -321। ठीक है, बेटा इसको डिवाइड कर दो
इसको बेटा जी किसके साथ डिवाइड करेंगे, माइनस ऑफ बेटा जी -107 के साथ डिवाइड करेंगे। देन माई एक्स वाई जेड बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट बेटा क्या आ रहा है 2, सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड थर्ड बेटा नाउ वी नो दैट टू मैट्रिसेस आर दी इक्वल व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो बेटा x कितना आ गया 2, y कितना आ गया 1 और माई z इक्वल्स टू 3, z की वैल्यू क्या आ गई 3। सो बेटा दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नाउ बेटा इफ यू हैव एनी डाउट विद इन 1 मिनट राइट इन अ चैट बॉक्स। अगर आप लोगों को कोई डाउट है देन राइट इन अ चैट बॉक्स, बी क्विक बेटा। Okay, so beta, after that we discuss our next question that are again based upon the matrix method. ठीक है बेटा, जो किस पे based है again is the application of a matrix method. So beta write down the statement, write down the statement, write down the statement for the next question. Solve the system of equation, solve the system of equation, or better you can write solve, find the uh, find the solution of the system of equation, or better the statement is that if the system of the equation is consistent then find its solution. ठीक है, if the system of equation is consistent then find its solution. So 3x minus y plus 2z equals to 3, 2x plus y plus 2x plus y plus 3z equals to 5, and x minus 2y minus z equals to 1. Now बेटा we want to solve this system of equation. ठीक है, तो बेटा हमें अगर system of equation consistent है तो उसका क्या find करना है, solution. First beta again we can rewrite this system of equation into the matrix form. This becomes beta, this system is 3 2 1 minus 1 1 minus 2 2 3 minus 1 into x y z into x y z equals to, this is equals to 3 5 and 1. Now beta again this is in the form of ax equals to b. Now beta first of all we find the determinant of matrix A. Now beta if we find the determinant, 3 into 1 minus 2 3 minus 1 minus minus is plus, this is 2 1 3 minus 1 plus 2 plus 2 2 1 1 minus 2. Now beta if we simplify that, this is equals to 3 1 1 minus 6 plus 1 minus 2 minus 3 plus 2 into minus 4 plus sorry minus 4 minus of 1. ठीक है, sorry beta this is plus. So beta now if I solve this, that this is minus 1. So this is equals to 15 minus 5 minus 4 minus 1 minus 5 minus 10. So beta this is equals to 0. Now beta my A determinant is 0. So beta if our A determinant is 0, that means we required a further discussion. Either this system of equation has a no solution, or students our system of equation has infinitely many solution.
and beta that is depend upon the behavior of adjoint A into B. ठीक है, ये बेटा किस पे डिपेंड करता है, हम किसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, adjoint A into B की मल्टीप्लिकेशन. नाउ बेटा वी नो दैट टू फाइंड द adjoint A हम लोगों को क्या फाइंड करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स. सो बेटा find the cofactors for the first row, then find the cofactors for a second row, for a third row. जल्दी से बेटा find करो cofactors for a first row, second row and third row. Be quick. सो बेटा अगर आप लोग को फैक्टर फाइंड करोगे, वेरी गुड बेटा. सो बेटा our first cofactor is 5. नेक्स्ट बेटा हमारा कोफैक्टर क्या आ रहा है, नेक्स्ट कोफैक्टर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5 एंड बेटा नेक्स्ट कोफैक्टर इज इक्वल्स टू -5. चेक करो बेटा जी कोफैक्टर्स फॉर अ फर्स्ट रो. क्या बेटा आपकी वैल्यूज सेम आ रही हैं जो मैंने लिखी हैं, वेरी गुड बेटा जी. -5 5. हाँ जी अनु बेटा आंसर चेक करो बेटा अपना, अनु गुप्ता, वेरी गुड. आदर्श, ओके. तो बेटा हमारे जो फर्स्ट मानव शर्मा, वेरी गुड बेटा जी. सो बेटा फर्स्ट जो हमारे कोफैक्टर्स आ रहे हैं दैट आर 5 5 एंड -5. और बेटा नेक्स्ट रो के हमारे कोफैक्टर्स क्या आ रहे हैं, द कोफैक्टर्स फॉर नेक्स्ट रो आर -5 -5 -5 एंड 5. एंड बेटा थर्ड रो के आपके कोफैक्टर क्या आ रहे हैं, -5 -5 एंड 5. ठीक है. आफ्टर दैट बेटा जी अब हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए, नाउ वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है बेटा अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए. तो बेटा जी वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए आपकी क्या आ जाएगी, 5 5 -5 5 -5 -5 5 5 -5 5 का ट्रांसपोज. नाउ बेटा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. बेटा हमें पता है ट्रांसपोज मीन्स वी इंटरचेंज द रोज एंड अ कॉलम. ठीक है, वेरी गुड अनु मिश्रा, वेरी गुड बेटा जी. ओके सो बेटा आपका जो लास्ट कोफैक्टर है वो, ठीक है बेटा, ओके ठीक है बेटा जी. सो हेयर इज अ माइनस, माइनस का साइन है बेटा यहाँ पे. ओके तो बेटा अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूंगी तो बेटा वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 5 5 -5 -5 -5 5 -5 -5 and -5 and 5. तो बेटा for the further discussion we required the product of adjoint A into B. ठीक है, मुझे बेटा क्या रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट ऑफ adjoint A into B. नाउ बेटा we find adjoint A into B. ठीक है बेटा फाइंड कीजिए प्रोडक्ट ऑफ adjoint A into B. जल्दी से बेटा फाइंड द प्रोडक्ट. So beta if we find our adjoint A into matrix B, adjoint of A into B, तो बेटा वो किसके इक्वल आ रहा है, that is equals to 5 5 -5 -5 -5 5 -5 5. ठीक है इनटू बी. बेटा मैट्रिक्स हमारा क्या था, अवर बी मैट्रिक्स इज 3 5 1. ठीक है नाउ बेटा चेक करो योर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू, बेटा फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है हमारा, बेटा जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है 15 -25 -5 दैट इज इक्वल्स टू -15.
और बेटा नेक्स्ट वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 15 माइनस 25 minus 5, that is again equals to minus 15, and last value is 15. So beta this is not equals to 0. बेटा चेक करो, if we find the product, ठीक है बेटा, हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड किया, कितना आ गया, -15 -15 एंड 15, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो बेटा हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी फाइंड, बेटा यहाँ से क्या आंसर आएगा, राइट इन अ चैट बॉक्स, बेटा बी क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश. Okay, beta, as we discussed, if A determinant is 0, but adjoint A into B is non-zero, then the given system of equation has a no solution. So, beta, this system of equation is inconsistent. ठीक है, जो बेटा जी मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था वो क्या है, दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है बेटा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था दैट इज द that system has a no solution because the system of equation is inconsistent system of equation. Now beta, any doubt in this, then write in a chat box within a 1 or 2 seconds. बेटा बी क्विक, जल्दी से, अगर डाउट है लिखो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ. वेरी गुड. ओके, सो बेटा नेक्स्ट वी डिस्कस, बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बेटा जी हम डिस्कस करेंगे, राइट डाउन, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, if consistent find its solution. X minus y plus z equals to 3 equals to 3, 2x plus y, 2x plus y minus z equals to 2, and minus x minus 2y plus 2z equals to 1. सो बेटा फर्स्ट आपको पता है हम लोगों ने इक्वेशन को कैसे लिखना है, इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, 1 2 -1. स्टूडेंट्स बेटा जी आप लोग व्हेन द क्लास स्टार्ट, बेटा उसके विद इन मैं बेटा जी कभी भी अटेंडेंस ले सकती हूँ. सो बेटा जी बार बार क्लास लीव करके ज्वाइन नहीं करनी. ठीक है, आई कैन टेक द अटेंडेंस एट एनी मोमेंट. ठीक है बेटा, मैं कभी भी अटेंडेंस ले लेती हूँ. दैट इज नॉट कंपल्सरी कि मैं एंड ऑफ द सेशन अटेंडेंस लूंगी और बेटा जी मैं स्टार्टिंग ऑफ द सेशन ही अटेंडेंस लूंगी. ठीक है, आई कैन टेक द अटेंडेंस एट एनी टाइम, इन द स्टार्टिंग of the lecture, in the mid of a lecture, or at the last of the lecture. ठीक है, तो बेटा ऐसे नहीं करना. So beta, if I can write this into the matrix method, 1 2 -1 -1 1 -2 1 -1 and 2 into x y z. x y z बेटा वो किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 3 2 and 1. अगेन बेटा दिस इज इक्वल्स टू ax इक्वल्स टू b. नाउ बेटा जी ax इक्वल्स टू बी, फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, a का डिटर्मिनेंट. ठीक है बेटा, यू कैन फाइंड a डिटर्मिनेंट. बेटा आप लोग a डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो बेटा वो किसके इक्वल आएगा, यूर a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, बेटा फाइंड कर लेना और चेक करना, यूर a डिटर्मिनेंट इज 0. ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोग, होप नहीं मुझे पक्का पता है बेटा, आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे. बेटा यूर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. अगर बेटा डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मीनिंग है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन either has a no solution और बेटा जी this system of equation has a infinitely many solution. ठीक है, तो बेटा इसके कोफैक्टर्स फाइंड करोगे और वी कैन राइट द एडजॉइंट ए. बेटा यहाँ पे मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ए लिख रही हूँ. ठीक है, सो बेटा इन दिस इफ आई फाइंड माई एडजॉइंट ए, बेटा आप लोगों ने सॉल्व करके चेक करना है, यूर एडजॉइंट ए इज, बेटा क्या आ रहा है वो, 0 0 0. बेटा काइंडली चेक दैट, -3 3 3 -3 -3 3 and 3. ठीक है, now बेटा if I multiply the adjoint A with a B, ठीक है,
बेटा एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन योर आंसर इज 0 0 0 -3 3 3 -3 3 3 इंटू क्या रहेगा 3 2 1। सो बेटा फर्स्ट एलिमेंट इज 0, नेक्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करो 0 0 0 -3 3 द 9 6 + 3 0 -9 6 + 3 is 0। सो बेटा अब adjoint a into b क्या आ गया 0। तो बेटा दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा जी इस सिस्टम के कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। नाउ बेटा इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एज वी डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है बेटा, हम लोग z की वैल्यू k पुट कर देते थे और वी कैन टेक इधर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। बेटा आपने इसको जैसे भी दिल करे z को k पुट करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन चूज कर लो, चाहे बेटा फर्स्ट और थर्ड चूज कर लो। बेटा इफ आई ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बेटा अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को चेक करो बेटा ऐड कर रही हूँ, तो बेटा x y के साथ y कैंसिल हो रहा है और z के साथ z कैंसिल हो रहा है। तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है 3x = 5। तो बेटा द वैल्यू ऑफ x इज 5/3। ठीक है, तो बेटा मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है 5/3 इफ आई कैन ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। नाउ बेटा सिमिलरली इफ आई ऐड, इफ बेटा अगर मैं ऐड कर रही हूँ फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है बेटा इफ आई ऐड फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो बेटा क्या आ जाएगा x एंड x आर कैंसल आउट। बेटा मेरे पास क्या आ गया -3y + 3z = 4। ठीक है, तो बेटा फ्रॉम दैट इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो बेटा मेरा -3y किसके इक्वल आ रहा है, -3y इज 4 - 3z। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 -4 + 3z/3। तो बेटा हमें पता है हम z को क्या पुट करते होते हैं, वी पुट द वैल्यू ऑफ z = k। सो बेटा हम z को क्या पुट करते थे k। अगर बेटा अब मैं z की वैल्यू k लिख रही हूँ, बेटा आई राइट हियर इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ z = k देन द वैल्यू ऑफ y, बेटा वैल्यू ऑफ y क्या आ रही है 3k - 4/3 एंड बेटा वैल्यू ऑफ x इज 5/3। बेटा मैंने जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन फर्स्टली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एंड बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। और बेटा यू कैन सिंपली सॉल्व बाय पुटिंग, बेटा आप लोग सिंपली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो बाय पुटिंग x इक्वल्स टू by putting z = k in a first and a second equation। ठीक है बेटा हमें पता है जब हम z को k पुट करेंगे, तो बेटा z को k पुट किया तो मेरी किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, देन बेटा z को k पुट करोगे फर्स्ट दो इक्वेशन आ जाएंगे, उसमें से आप लोग x और y की वैल्यूज निकालें। नाउ बेटा टू चेक दैट जो आप लोगों ने सोल्यूशन फाइंड किया दैट इज अ करेक्ट और अ नॉट, वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज आइदर इन अ फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और थर्ड। बेटा किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और चेक करो दीज जो बेटा हमने सोल्यूशन फाइंड किया दिस सोल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन और नॉट। बेटा इफ वी पुट लेट अस सपोज बेटा जी वी पुट इनटू अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा मैं सपोज करती हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, आप बेटा सेकंड और थर्ड में पुट करो। बेटा put into a second and a third equation either in a second or a third equation और चेक करो बेटा क्या ये इक्वेशन के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। सो बेटा इफ आई पुट दिस इनटू अ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है मैंने बेटा कौन सी इक्वेशन चूज की है फर्स्ट, आप लोगों ने बेटा जी कौन सी इक्वेशन चूज करनी है, फर्स्ट मैं चूज कर रही हूँ, आप लोग बेटा सेकंड या थर्ड चूज कर लो। x की वैल्यू क्या आ गई 5/3, y की वैल्यू क्या थी बेटा जी, y की वैल्यू क्या थी मेरी 3k - 4/3 और बेटा z की वैल्यू हमारी क्या है k। सो बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रही हूँ 5/3 - k - 4
प्लस 4/3 प्लस के, बेटा के के साथ के कैंसिल हो गया, ठीक है, ये क्या जाएगा 9/3 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो बेटा माई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। सो दैट मीन्स बेटा जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया है दैट इज अ करेक्ट। सो बेटा वाई वी कॉल दिस एज के हमारे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है, ठीक है, बिकॉज बेटा फॉर इफ यू पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ के यू कैन फाइंड द डिफरेंट सोल्यूशन। के की वैल्यू 1 पुट करो और सोल्यूशन आएगा। If you can put the value of k is equals to 2, you can get another solution. So beta, this completes our